revised all the topics, okay, of maths. So now we will start from the starting. Okay, so before I start the class, there is one question for you. Suppose you have 20 candies, okay, and you have 4 friends, and you want to distribute candies equally to your 4 friends. ठीक है, आपके पास 20 कैंडीज हैं और आपके 4 फ्रेंड्स हैं, और आप अपने 4 फ्रेंड्स को, चारों फ्रेंड्स को इक्वली कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो एक फ्रेंड को कितनी कैंडीज दोगे? वेरी गुड, आई एम गेटिंग द आंसर 5, 5. All are writing 5. Okay, so above, will you unmute yourself and tell me you have written 5 answer. How did you know? आपको कैसे पता चला कि आप हर एक फ्रेंड को 5 कैंडीज दोगे? मैम क्योंकि 20 कैंडीज है ना, और 4 बच्चे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 बचेंगे. यस, हमने डिवाइड किया, हमारे पास 4 फ्रेंड्स हैं और 20 कैंडीज हैं, है ना, तो हम 4 को जब 20 से डिवाइड करेंगे, देन व्हाटएवर द क्वेश्चन विल बी देयर, जो भी आंसर आएगा, क्वेश्चन जो आंसर आएगा हमारे पास, दैट विल बी द आंसर. जब हमने 20 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आंसर आया. दैट मीन्स वी विल गिव 5 कैंडीज टू ईच चाइल्ड, है ना, ईच फ्रेंड. हम 5 कैंडीज देंगे एक फ्रेंड को. तो आज के क्वेश्चन से यू मस्ट हैव द आइडिया, you must have got the idea that we are going to start the revision of division. Okay, हम division की practice करेंगे because most of the students do mistakes in checking work, है ना. So today we will revise division. So before I start, notebook निकालनी है. yes beta, of course we will practice on the notebook. So keep your maths notebook with you. You must keep your notebooks with you whenever you are you are joining the class. Okay. So before I start the class, give me one answer. There is a rule for checking in division, है ना. हमने checking में एक rule किया है division में. Can you write that rule in the chat box? आप जो हम rule follow करते हैं checking के लिए, can you write in the chat box? Very good. Which rule we follow for checking our division? हम जब डिवीजन करते हैं, जब डिवीजन का सम करते हैं, तब हम कोई एक रूल फॉलो करते हैं, है ना, चेकिंग के लिए. वो रूल कौन सा होता है? राइट इन द चैट बॉक्स. आई एम नॉट गेटिंग द आंसर. I have answer. Ma'am, after your answer there is dot dot dot. Answer is not visible. Samriddhi. Ma'am, divide and check. Yes, yes. One student has given the answer. ID from Dhankor. Very good. Sachin, you haven't written it right correctly. Anahat, good. So the rule is, the formula for checking the division sums is D is equal to Q multiplied by small d plus remainder. Now, can anybody tell me what is D here? Capital D. What do we call capital D in the chat box? Don't unmute. Write in the chat box. What do we call? Again, Samriddhi, your answer is coming, but it is written. The answer is then dots are there. Manya. Yes. Yes. Very good. Dividend. D is known as dividend. Dividend. Okay. Okay. Tell me, what do we call Q? Q को हम क्या बोलते हैं? Question? Is it question? Yes.
Arman, very good. Arman has written question. It's quotient. Yes. So Q is quotient. And D, small d. In this rule, small d is known as divisor. Divide. And R is known as remainder. R is known as remainder. Okay. So before we do division sums, you must know what is dividend, what is divisor, what is quotient, and what is remainder. So let's solve one question. You will also solve the question with me on your notebook. Okay. So the question is divide and check 78 divide by 6. 78 divide by 6. Very good. Solve it. And write the quotient. Okay, write the quotient in the chat box. Whatever quotient you got after dividing it, write in the chat box. Okay. And let me see who are doing and who are not doing. मैम कौन सा क्वेश्चन करना है मेरे को बोर्ड दिखाना. 78 divide by 6. $78 divide by 6. ID from Amardeep Kaur, please switch on your video. Okay, Japlin has given the answer. Arav has given the answer. ID from Radharani has given the answer. Abhav has given the answer. Very good. Mahin also. ID from Amarjit Kaur. Jasroop Singh. Very good. Arman has given the answer. Very good. Is it okay now? Have you got any remainder? Yes, beta, it's okay now. Have you got any remainder? Write that also in the chat box. अगर आपको रिमाइंडर भी मिला है तो उसको भी आपने चैट बॉक्स में लिखना है. Okay, there is no remainder. Some are writing 0 and some are writing no. That means the remainder is 0. Okay, let's solve this. Look at here. Those who have not solved it yet. First of all, we will write 78, then 6. 6 is a divisor and 78 is a dividend. Now we will read table of 6 up to 7. सबसे पहले हम 6 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे? 7 तक. 6 zeros are 0, 6 ones are 6, 6 twos are 12. Oh, 12 is greater than 7. है ना? जो हमने 7 तक रीड करना था टेबल, लेकिन जो 12 है, 6 ones are 6, 6 twos are 12. 12 greater है, बड़ा है 7 से, तो हमने previous number पे जाना है. 6 ones are 6. Then minus 8 as it is will come, and 7 minus 6, 1. Now we have to read the table of 6 up to 18. 6 zeros are 0, 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18. So we have got here 18. Now when we will subtract 0, 0, so remainder is 0 and quotient is 13. Now checking. So whenever we do checking, we will write the rule first. है ना? हमने rule लिखना है पहले. The rule is dividend is equal to quotient multiplied by divisor plus remainder. So dividend हमारे पास कितना है? 78. We have written here 78 and quotient 13. Multiply by divisor 6 plus remainder हमारे पास है 0. Now we will solve 78 as it is equal to. पहले हम 13 को 6 से multiply करेंगे. और if you know the table of 13,
You have to count the table of 13 up to 6. So 13 6 are 78 प्लस 0. किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो नंबर उतना ही होगा एज इट इज. सो द आंसर इज 78 is equal to 78. Now the right hand side and the left hand side both are equal. That means our answer is correct. जब हमारे पास एंड में दोनों आंसर्स इक्वल नंबर्स आ जाएंगे, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है. इक्वल नंबर मीन्स जितना हमारे पास डिविडेंड है, ठीक है, जितना हमारे पास डिविडेंड है उतना जब आ जाएगा हमारे पास आंसर में दोनों तरफ, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द सम ऑफ डिवीजन. नाउ one sum of multiplication also. So open your notebooks and start doing with me. The question for you is, and you will write the answer in the chat box, okay? And the question for you is 604 multiply by 9. Now if you know the table of 9 only, then you will be able to do it. That is why I always ask you to revise the tables, learn the tables also, okay, because your division multiplication is based on tables. Very good. Right, solve it on your notebook. Very nice, I can see all are doing. repeat करना beta 604 multiply by 9. 604 multiply by 9. Okay, Samriddhi, again I am not able to read your answer because it's showing the answer is ... Right? 543. Okay, good. Yes, your answer is correct. Mahin, very good. Jasroop, good. Abhav, good. Arman, good. Riddhi, Sahibpreet, very good. Cover, very good. Show me your notebooks on the camera too. मुझे अपनी नोटबुक्स जिन्होंने कर लिया है सम, वो अपनी नोटबुक्स कैमरास के आगे भी रख के मुझे दिखाएंगे. कहीं आप चैट बॉक्स से देख के आंसर तो नहीं लिख रहे हो, एक दूसरे का आंसर देख के तो नहीं लिख रहे हो. शो मी योर नोटबुक. अरमान, शो मी योर नोटबुक. तीरथ, यू टू. कीप योर नोटबुक in front of the camera. Good. So those who have done, they have kept their notebooks in front of the camera. Very good, very nice. Okay, so let me solve this sum on the board, and those who haven't solved it, just look at here and understand how to solve it. Okay, so first of all we will write place values, then for carry we will write zeros, and then we will write 604 multiply by 9. Now we will read the table of 9 up to 4. So 9 zeros are 0, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36. So we will write 6 here and 3 will go as a carry. Now 9 zeros are 0, 0 plus 3, 3. Then we will read table of 9 up to 6. 9 zeros are 0, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 sixes are 54. So we will write 54 here because there is no other number. So we will write 54 as it is. Okay. So the answer is, and at the end we will write answer 5436. So in this way we will solve the sum of multiplication. Okay? Ma'am, it is right. Yes, it's right. So today we revised
division and multiplication sums. Now in worksheets which I have sent today, I have given you multiplication sums and division sums. So solve them, and if you have any doubt, you can ask me. Okay? And Harshika, it's your birthday today. Happy birthday. Thank you, ma'am. Okay. So that's all from my side. If you have any doubt, you can ask me now. Otherwise, ma'am is going to start your EVS class. So I hope there is no doubt. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, Neetu ma'am. You can start the class. Good morning, Monica ma'am. Good morning, Purnima ma'am. Good morning, ma'am. Purnima ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Good. I think that she Okay, is no not problem. able to join. morning, ma'am. Good morning. No need to say good morning again and again. Write in the chat box if you want to Good write. morning, ma'am. Write. Good morning, All ma'am. must be ready with your notebook. I had already sent message in the group कि आपको अपनी नोटबुक के साथ रेडी होना है. आपको अपनी ईवीएस नोटबुक उसमें ब्लैंक पेज ओपन करिए एंड राइट टुडेज डेट. आज आपका टेस्ट है. मैम फुल हो गई तो कोई भी पेज, किसी भी पेज पे आप वर्क कर सकते हो. आज का सारा वर्क एक ही पेज पे करना है. टुडे इज योर सरप्राइज टेस्ट. Those who are ready, show me your thumbs up. Those who are ready, show me your thumbs up. Okay. Bete, we have revised all our chapters, PT1 and PT2. हमने दोनों रिवाइज कर लिए हैं पूरे. तो आज मैम आपका लेने लगे हैं सरप्राइज टेस्ट कि आपको क्या समझ आया. एंड जिन जिन के पेरेंट्स हैं साथ में, मैम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि वो चेक करेंगे कि बच्चे अपना वर्क अपने आप करें. कोई कहीं से भी नहीं देखेगा. पहले मैम आपको ये बोलते होते थे ना कि बेटे बुक से देख लो, नोटबुक से जल्दी से देख के आंसर लिख लो, बोलते थे ना, है ना. बट आज आपने कहीं से भी नहीं देखना. आपने अपने आप को चेक करना है. आ गया नहीं बैठे तो आपने अपने आप को अपने आप चेक करना है. ऑनेस्टली वर्क करना है सारा. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. मैम वन वर्ड आंसर लिखना है या फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है? वन वर्ड आंसर. थोड़ा सा पोर्शन आपका ओरल टेस्ट होएगा, थोड़ा सा रिटन टेस्ट. ठीक है. रेडी? Okay, I'm waiting. So let me present my screen. मैम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं तब तक आप अपना पेज लीजिए या नोटबुक में. एनी नोटबुक बेटे, एनी नोटबुक, एनी पेज, एनी शीट, कहीं पे भी. ओके. आप अपना वर्क लीजिए एंड आप उसके ऊपर आज की डेट लिखिए और ऊपर लिखिए सरप्राइज. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम आज सरप्राइज टेस्ट है. Yes, that is what I am saying. Start present. My screen is visible to all. So today Yes, is ma'am. 9th October. सबके पेज Ma'am, no. आपने 9th October डेट लिखी है. What no? I know my screen is visible. अगर आपको नहीं नजर आ रही है, आपको अपना कनेक्शन चेक करना है. मैम को पता है, मैम की स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल है. So first of all, let's revise the spellings. अब चेक करने लगी हूँ मैं कितने स्पेलिंग्स आते हैं आपको. ठीक है. आपने अपने पेज पे 5 नंबर्स पुट करने हैं. पुट 5 नंबर्स ऑन योर पेज. जैसे हम डिक्टेशन के लिए करते होते हैं ना, 5 नंबर्स पुट करें.
क्विकली, जिन बच्चों ने 5 नंबर्स लिख लिए 1 2 3 4 5 वो मुझे थम्स अप करके बताएंगे। ओके, 3 टाइम्स मैम एक वर्ड को बोलेंगे। आई विल रिपीट द वर्ड 3 टाइम्स, इससे ज्यादा नहीं। और इसके बाद कोई नहीं पूछेगा मैम प्लीज रिपीट, ना ही आप बोलोगे क्या या व्हाट। कोई भी बच्चा जब अनम्यूट करेगा अपने आप को, उस बच्चे के -5 हो जाएंगे आज के टेस्ट में से। जिस बच्चे ने डिक्टेशन के ड्यूरिंग डिक्टेशन, दोज हु विल अनम्यूट, ठीक है, जो बच्चे अनम्यूट करेंगे उनके -5 हो जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे देखनी है आप सबके फेसेस पे प्यारी सी स्माइल। खुश होके पढ़ते हैं ना, खुश होके हमने सब कुछ पढ़ा ना, अब खुश होके टेस्ट देना है। स्माइल, गुड। घबराना नहीं है, हमने अपने आप को चेक करना है कि हमें आया या नहीं आया। नहीं आया होगा तो हम रिवाइज कर लेंगे ना। ओके, सो नंबर 1 इज neighborhood. Write down neighborhood. First word is neighborhood. Neighborhood. बोलो मत, लिखो क्विकली। किसी से नहीं पूछना आपने। नंबर 2, first is neighborhood, second is textile. Second is textile. Second is, चलो टेक्सटाइल लिख लिया आपने। सेकेंड इज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, फर्स्ट नेबरहुड, सेकेंड टेक्सटाइल। थर्ड occasions. Occasions. There is one girl, ID with Reema Bansal. Are you writing? Good. मैम क्या बोला? Occasions. 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 Number 3 occasions. Number 1 neighborhood. Number 2 textile. Number 3 occasions. Who is writing in the chat box? You have to write in your notebook बेटे। आपको समझ नहीं आया? नोटबुक में लिखना है। Number 4 vitamins. Number 4 vitamins. Number 4 vitamins. जसकीरत कहाँ घूम रहे हो आप? Write down number 4 vitamins. मैम फोर्थ क्या है? विटामिन्स। देखो जो बच्चे अनम्यूट कर रहे हैं उनके माइनस हो रहे हैं, -5। विटामिन्स। And the last one, number 5 is carpenter. 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 So number 1 neighborhood, number 2 textile, number 3 occasions, number 4 vitamins, number 5 carpenter. ओके, अब जिनके पेरेंट्स साथ में बैठे हैं वो अपने पेरेंट्स से चेक करवाएंगे, और जिनके नहीं बैठे हैं वो अपने आप करेंगे स्क्रीन से देख के। लुक एट द स्क्रीन। नेबरहुड की स्पेलिंग चेक करो अपने। फिर सबने अपने मार्क्स 5 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं वो आपने लिखने हैं चैट बॉक्स में। नेबरहुड के बाद मैम ने टेक्सटाइल बोल दिया था, तो ओकेयस एंड टेक्सटाइल के स्पेलिंग देखिए, विटामिन्स एंड कारपेंटर। जल्दी से अपने स्पेलिंग चेक करो और कितने मार्क्स आएंगे चैट बॉक्स में। ऑनेस्ट हो, सच सच कि कितने मार्क्स आए आपके। बबलीन के 5 आउट ऑफ 5। अनीश गुड। क्विकली क्विकली।
हाँ जी अरमान, कौन सा वर्ड रॉन्ग हो गया आपका? चैट बॉक्स में लिख के बताओ कौन सा वर्ड रॉन्ग हो गया, उसके करेक्ट स्पेलिंग लिखो स्क्रीन से देख के। मैम हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी गरिमा। जो आप सेकंड में मैंने टेक्सटाइल बोल सेकंड दिया वाला था ना, लिखवाया तो आप था वो टेक्सटाइल के स्पेलिंग सेकंड नंबर पे चेक कर लो। मैंने तो 5 के 5 आपको स्क्रीन पे दिखा दिए ना। मैम मैंने गलती से एक्साइल 3 नंबर पे लिख कोई दिया। बात नहीं, आप अभी जिन बच्चों के जो स्पेलिंग रॉन्ग हुए हैं वो करेक्ट स्पेलिंग स्क्रीन से देख के अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे। वेरी गुड अरमान, अब आपको हो गई लर्न स्पेलिंग। अब जिसके जो स्पेलिंग रॉन्ग है क्विकली लर्न कर लो जब तक मैम बाकी बच्चों के मार्क्स देख रहे हैं। ओके गुड। मेरे भी 5 ऑफ मैम मेरे भी 5 ऑफ बिग क्लैप फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने ऑनेस्टली वो सारा वर्क किया है, जिन्होंने ऑनेस्टली किया है, ऑनेस्टली नंबर लिखे हैं। अपने आप के लिए क्लैप करो, अनम्यूट नहीं करना, म्यूट रखते हुए अपने लिए क्लैप। वेरी गुड, यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है ना आपको? अपने आप को चेक करके आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल रही है ना? चलिए, आई होप ऑल आर रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। रेडी? नाउ अभी आपको नोटबुक में ही करना है वर्क। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपने देखना है स्क्रीन पे, आपको चेक करना है। जो भी मैम ने आपसे पूछा होगा उसका आंसर लिखना है आपने चैट बॉक्स सॉरी नोटबुक पे। रिलीजियस फेस्टिवल्स की 2 एग्जाम्पल, नंबर 1 ऐसे लिख के और उसकी 2 एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स ऑफ। मैम आपकी स्क्रीन मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटे, उसको थोड़ा सा आप जूम कर सकते हो अगर आपको राइटिंग शॉर्ट लग रही है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम यहाँ पे आंसर ही लिखना है बस। ओनली आंसर, तभी क्विकली होगा ना। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम हो गया। मैम जो आपने ऊपर हेडिंग डालेंगे कोई हेडिंग नहीं लिख दिया आपने, डोंट वेस्ट टाइम। ओनली नंबर 1 लिखिए, उसके 2 एग्जांपल। टू एनी 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओके मैम। राइट एनी 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स। Next is write any 2 national festivals. जसकीरत वेयर कहा जा रहे हो आप? बुक से देखने अपने आप करो बेटे, जो नहीं आएगा आपको पता चलेगा आपको क्या नहीं आता, फिर तभी उसको रिवाइज करोगे ना। नेक्स्ट, पीपल हु बिल्ड अ हाउस। पीपल हु बिल्ड अ हाउस हमने किया था ना बहुत सारे। हाँ आप मैम वेट करें, मैम उनके लिए वो दिखा रहे जिनका हो गया वो नेक्स्ट कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ही रहेंगे ना। आप 1 बाय 1 कर दो। अब मैम ने गलती से नंबर 2 पे भी नंबर 1 लिख दिया, बट आपने नंबर 2 लिख रहा है। जसकीरत आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? जसकीरत आपको आ रहा है? नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। एनी 2 बॉडी बिल्डिंग फूड। अब आपने देखो पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, आपने वर्कशीट की है, आप सबको सब कुछ आता है। डोंट टेक एनी हेल्प, किसी की हेल्प नहीं लो, कहीं से देखो मत, अपने आप वर्क करो। अपने आप को आपने चेक करना है कि हमें आया, हमें याद है या नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड। First is religious festival, second national festival, third people who build a house, fourth bodybuilding food, and fifth energy giving food. And six is हाँ जी 6 is types of roofs. हमने 3 टाइप्स की रूफ्स पढ़ी हुई हैं, आपने यानी 2 के आंसर लिखने हैं।
चलो, you have 5 minutes to do this work. I'm waiting for you and I'm watching all of you. Don't waste your time by writing anything in the chat box. You have 5 minutes. Okay, very good. Those who have done, no need to write in the chat box. अभी हम इसको चेक करेंगे और फिर अपने मार्क्स लिखेंगे आप चैट बॉक्स में कि आपका सारा करेक्ट है या नहीं है. 5 minutes आराम से करो. आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, बट डोंट चीट. चीटिंग करके नहीं करना. Very good. All good students are doing their work nicely. Harshika, you have done? Yes, ma'am. Okay. Today is your birthday. Happy birthday, beta. God bless you. Thank you, ma'am. Okay. So 1 minute more, then I will give you the answers. 1 minute more. I'm waiting for you all to complete your work. No need to write done. I am watching all of Excuse you. me, ma'am. हाँ जी अक्षित. Excuse me, मैम आपने 4 के नीचे है ना 6 मैंने लिखा है. बहुत सारे गलत नंबर लिखे हैं. 2 की जगह पे मैंने 1 लिख दिया. फिर मेरे को सारे रॉन्ग हो गए ना. ये आपने अपने करेक्ट नंबर लिखने हैं. मैम से मिस्टेक हो गई, बट आपने अपना करेक्ट करना है. Okay. Show me your thumbs up if you have done. 1, 2, 3. Niharika, you have done or not? Yes, ma'am. Okay. Himmat Singh. Himmat Singh done? मैम आपने स्क्रीन शो करके चेक कभी करा है? 1 minute, मैम. Okay, okay. I am waiting. मैम हाँ जी बेटा. मैम आपने स्क्रीन शो करा के आंसर भी चेक कराना हाँ है. जी. अभी देखो, ये देखो, अभी स्क्रीन शो कर रही हूँ मैं. आंसर चेक करो. चलो. रिलीजियस फेस्टिवल मैम ने लिखे. अब हमने वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हमने ये भी देखना है कि किसने मैम के जैसा सेम लिखा था, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स थे ना. आप कोई भी लिख सकते हो, बट एक ये गेम बन गई कि किसके सारे आंसर्स मैचिंग होते हैं, देखती है. ओके अरमान, आप लिख रहे हो कुछ? चलिए. रिलीजियस फेस्टिवल्स मैम ने लिखे हैं दुर्गा पूजा एंड गुरु पूरब. आप कोई भी लिख सकते हो. होली, दिवाली.
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, पूरी विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल है। आप अपना फोन पे चेक करो बेटे, आप फोन पे हो या लैपटॉप पे हो? इधर दिवाली मैम, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम जो आपने ये गुरपुरब वाला लिखा है ना मैम, ये ना मेरे स्पेलिंग इसमें से ना मुझे भूलते हैं मैम, आप समझा दो कि ओके, मुझे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैम मुझे आंसर नहीं शो हो रहा है। हो रहा है बच्चे शो। पूर्णिमा मैम, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द विजिबिलिटी ऑफ स्क्रीन? No, ma'am, it is. हाँ जी अरमान। मैम ये मैम मेरा इंडिपेंडेंस के स्पेलिंग गलत हो गए, इसके भी मार्क्स कटेंगे? हाँ जी कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। ओके मैम मैम। मैंने भी गांधी डैडी और इंडिपेंडेंस डे लिखा है। वेरी गुड। अभी म्यूट करो, बाद में मैम पूछूंगी आपको ये वाली गेम का आंसर। मैम मेरा भी आपके जैसे सेम है। अभी नहीं बताना, अभी पहले मैम को सारे आंसर्स लिखने दो, ठीक है? IT with कीर्ति सोप्ती। What is your name? Parin? मैम यस। तो सिट प्रॉपर्ली बच्चे। ओके मैम। चलो, नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, ठीक है? आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते थे। नेक्स्ट, पीपल हु बिल्ड अ हाउस, मैम ने लिखा है मैसन पेंटर। आप मैसन, पेंटर, प्लम्बर, आर्किटेक्ट, और क्या था, इलेक्ट्रीशियन, कुछ लिख सकते हो। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड, मैम ने लिखा है पल्सेस मीट। आपकी बुक में बहुत सारे थे, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, एनर्जी गिविंग फूड, मैम ने लिखा है राइस एंड ब्रेड। आप कुछ भी लिख सकते हो, पोटैटो या जो भी आपकी बुक पे था। ओके, अभी मैम आप बुक पे से भी चेक कर सकते हो। देन टाइप्स ऑफ रूफ, फ्लैट एंड स्लोपिंग, और 3 टाइप्स की होती है, फ्लैट, स्लोपिंग एंड सेमी सर्कुलर। उनमें से एनी 2 आपको लिखनी, ठीक है? अब वो बच्चा बताएगा मुझे जिसके सारे आंसर्स मैम से मैच कर रहे हैं, जिसके 6 आंसर्स मैम से मैच कर रहे हैं। कोई है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम मेरा लास्ट वाला है, फ्लैट रूफ और स्लोपिंग। मैम ओके। लेकिन मैंने स्लोपिंग वाले लिखा है। मैम मेरा भी मैच कर रहे हैं। एनर्जी गिविंग फूड मेरे भी आप जैसे सारे। मैम जैसे आपके है ना आंसर वैसे मेरे। एनर्जी गिविंग फूड में मैच कर रहे हैं। अगर किसी का आंसर मैम पूरे मैच कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में अपना नेम लिखेगा। मैम की आपने पूरी बात सुनी? नो, आप पहले ही सब बोलना स्टार्ट हो गए। और उसके बाद आपने ये मुझे बताना है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है। मैच नहीं भी कर रहे, नो प्रॉब्लम, आपके करेक्ट होने चाहिए। ये आपने अपनी बुक से चेक करना था, ठीक है? अदरवाइज मैंने बोल ही दिया। मैम मेरे पूरे सारे मैच 6 आप जैसे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब आगे चले। नेक्स्ट इज आंसर इन 1 वर्ड। चलो, इसका आंसर मैं आपको साथ साथ ही बताऊंगी। दिस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जल्दी से लिखिए इसका आंसर। लिखना है परिन, नॉट स्पीकिंग, बोलना नहीं है। अनम्यूट करने वालों के 5 मार्क्स डिडक्ट होने हैं। आयुष्मान लिख लिया? This is the birthday of Jesus Christ. And the answer is Christmas. किस किस का करेक्ट है? thumbs up. Very good. Spellings should also be correct. Then, this we wear on a rainy day. This we wear on a rainy day.
And the answer is raincoat. Next, this type of roof is found in hilly areas. Are you writing? Very good. जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, I am very happy with those. हिली एरियाज में रूफ्स होती हैं स्लोपिंग. ओके, आर यू गेटिंग इनफ टाइम? लिखने के लिए टाइम मिल रहा है आपको? मैम फास्ट तो नहीं है? ओके. नेक्स्ट, मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम फेस्टिवल. मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम फेस्टिवल. मैम सब क्वेश्चन अच्छे से दिख ही नहीं रहे. क्यों नहीं दिख रहे? कौन बच्चा ये जिसको नहीं दिख रहे? मैम बोल भी रहे हैं ना, तो आप मैम की आवाज सुन के लिख लो. मेन अट्रैक्शन ऑफ ओनम फेस्टिवल. एंड द आंसर इज, ओ सॉरी, मैम ने रॉन्ग लिख दिया आंसर. आंसर आना है बोट रेस. मैम ने रॉन्ग लिख दिया आंसर. नेक्स्ट इज अ कंप्लीट फूड. मैम, हाँ जी. मैम मेरा फोन उस वक्त से हैंग हो रहा है. जो काम आपने पहले कराया है वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. मैं सारा आज का वर्क पर व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, ठीक है? आप बाद में भी चेक कर लेना. अ कंप्लीट फूड. आंसर इज मिल्क. मोनिका मैम को व्हाट्सएप से बोल दूंगा जो आपने मैथ का काम कराया. नेक्स्ट इज, ये हो गया सबका? ऑल हैव डन दिस वर्क? शो मी योर थम्स अप इफ यू हैव डन. एक्सक्यूज अगर मी नहीं मैम. हुआ है, आई एम वेटिंग फॉर यू. मैम के आपके सामने स्क्रीन. फोर्थ वाला आंसर यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, उसका आंसर आना है बोट रेस. इसको करेक्ट करके मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगी ये सारा. एक्सक्यूज मी मैम. मैंने पहले लिखा हुआ है बोट रेस उससे पहले. हाँ जी, बोलो बोलो बेटे. मैम गूगल फॉर्म नहीं है, इसके बाद हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने लगे. ठीक है. नाउ इट Excuse me, इज ma'am. क्विज टाइम. इट इज क्विज टाइम. इसमें है रेड. Ma'am? यस अरमान. मैम मैंने ना स्लोपिंग रूफ नो लिखा है. प्रॉब्लम. नाउ ओके अब मैम. देखो, अब है आपका रेड एंड ब्लू सेक्शन. दोनों सेक्शन है ना, रेड एंड ब्लू सेक्शन का कॉम्बिनेशन क्विज में. रेडी? रेडी? अब आप चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे और फिर देखते हैं कौन से सेक्शन का आंसर पहले आता है. उसको मार्क्स मिलेंगे. इफ यू कैन सी, मैम ने आपके लिए बनाया है. यहाँ पे मैम आपके लिए मार्क्स लिखेंगे, फिर देखते हैं मैम अपना बुक्स पे नहीं लिखना. चैट बॉक्स में लिखना है. मैम अपना बुक्स पे नहीं लिखना. No. Now you will write in the chat box. Ready? 1, 2, 3. Let's start. And the first question is, when do we celebrate Independence Day? Let me see who will give correct answer. देखिए कि जल्दी लिखो पर करेक्ट ना हो. प्रणव का आंसर आया है 15 अगस्त. प्रणव अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ आपका सेक्शन. I'm section blue. Pranav, Ma'am, which section? section blue. Blue. Okay. तो प्रणव को मिल गए 5 पॉइंट्स. ब्लू सेक्शन को मिल गए 5 पॉइंट्स. Thank you, ma'am. Okay. So are you ready for the next question?
Then here comes the next question, role of water in our body. इसका एक वर्ड का आंसर लिखना है. To dash our food. इसमें क्या आएगा? किसका माइक अनम्यूट है? पूर्णिमा मैम प्लीज चेक और म्यूट करना. आईडी विद रवि शर्मा. अगर ये म्यूट रखेगी यू कैन रिमूव हर आल्सो. आईडी विद रवि शर्मा. Unable to do, ma'am. Again and again वो खुद हो गया. मिस हो गया मेरे से. इसका अब मेरे को चेक करना है. पूर्णिमा मैम, कैन यू सी द चैट बॉक्स? ओके. ये अरमान ने माहिन का आंसर आया है. Digest. Mahin, which section? Mahin, which section? Red. Mahin, you are in red section. महीन ने लेफ्ट कर दी. ओके, रेड में है ना माहिन? मैम मुझे पता है महीन ब्लू में है. ब्लू में है तो फिर से मिले माहिन को 5 मार्क्स. चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Source of milk. Source of milk. Cow. Okay, cow is also a correct answer and animal is also a correct answer. चलिए, अरमान, which section? Blue. Okay, एक मिनट. इसके काउ से मिल्क मिलता है हमें, उसको मैं करेक्ट मान रही हूँ. अदरवाइज आपको लिखना था एनिमल्स. ओके अरमान, ब्लू सेक्शन. ओके, 5 मार्क्स. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. रूफ ऑफ इग्लू. रूफ ऑफ इग्लू. यस, माहिन का फिर से करेक्ट आंसर आया है सेमी सर्कुलर. देन अगेन ब्लू सेक्शन. मैम सेकंड ब्लू क्लास. ओके, कम ऑन रेड सेक्शन. आपने नहीं आंसर करना. नेक्स्ट इज बर्थ डेट ऑफ गांधी जी. बर्थ डेट ऑफ गांधी जी. जोविता, वेरी गुड. 2 अक्टूबर. जोविता इन विच सेक्शन? मैम रेड. वेरी गुड जोविता, आपने अपने सेक्शन को 0 आने से बचा लिया. मैम हमारे तो अभी 15 मार्क्स है. हाँ जी. सो लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ. यस, ऑल ऑफ यू. So red section has got 5 marks and blue section has got 20 marks. Okay. So अब ये क्विज हर क्लास में होनी है और हर क्लास में आपका ये ऐसे टेस्ट होना है. जब तक हमारे एग्जाम है उससे पहले जितनी क्लासेस होंगी उसमें हम ऐसे ही गेम्स खेल के अपनी चैप्टर्स रिवाइज करेंगे. ओके, थम्स अप करके बताओ जिसको अच्छा लगा आज की एक्टिविटी. आपने एंजॉय किया और अपने आप को चेक किया आपने. इसका पीडीएफ मैम आपको उसमें भेजेंगे व्हाट्सएप पे. आप अपने आंसर्स उससे फिर से मैच कर लेना जो जल्दी में नहीं कर पाए. तो एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम, ये आपके पर्सनल नंबर पे भेजना है. क्या भेजना है? सरप्राइज. आपने नहीं भेजना, आपने साथ साथ चेक करना था. अब मैं आपको इसकी पीडीएफ में भेज दूंगी. अगर आपका कुछ मिस हो गया आप उसमें से चेक कर लेना. हम सेकंड ब्लू पे भेजोगे? हाँ जी बेटे. मैम कैन मैम की बात सुनिए बहुत ध्यान से मैम की बात सुनिए. आज पहले मैम की बात सुनो बेटे. आज हमने PT2 के सारे चैप्टर्स
कि बीच बीच में से मैम ने आपसे सरप्राइज टेस्ट लिया है, तो अब आपको मंडे आपकी क्लास है ना, मंडे तक चैप्टर 5, 6 एंड 9 बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। ऑन मंडे आई विल सेंड यू वर्कशीट फ्रॉम दीज चैप्टर्स 5, 6 और 9 में से मैम आपको वर्कशीट भेजेंगे। तो तब तक आपका PT2 का पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर लेंगे, तो आपकी पूरी एग्जाम की प्रेपरेशन हो जाएगी। आज मैंने आपको गूगल फॉर्म नहीं दिया, अब आपका मंडे, ऑन मंडे आई विल सेंड यू रिवीजन वर्कशीट प्लस गूगल फॉर्म, दोनों चीजें मैम आपको भेजेंगे ऑन व्हाट्सएप। ओके, हाँ जी। व्हाट्सएप पे भेजना। आपने कुछ नहीं भेजना बेटे, अभी आपने कुछ नहीं। मैम ने आप भेज, हाँ, मीटिंग में आई विल सेंड, गॉट इट। अभी किसी भी बच्चे का अगर कुछ भी पेंडिंग वर्क है जो आपने अभी तक नहीं भेजा है, यस यू कैन लीव, जिसको मैम जिसका मैम ने लिस्ट भेजी है ना उन बच्चों की, अगर आपके रूम में है तो आप अपना वर्क सेंड कर दीजिए। बाय बाय मैम, बाय बाय मैम, Goodbye. बाय मैम, Goodbye. Have a nice day. You can leave the meeting. बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, पूर्णिमा मैम, हाँ जी मैम। मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओ सॉरी।